Hello students, my name is Gaurav. I welcome you all to this wonderful session of Weight Science. I hope you all must be having a great time and you all must be safe at your places. I welcome you all to this wonderful session of Weight Science, and now you can hit the bell icon for the regular update, and also you can subscribe to our channel, that is Weight Science. Uh, Yesterday we have discussed first chapter of our book, namely Understanding Economic Development. And today we shall be discussing the second part of this chapter, and more or less we shall be completing this chapter today itself. So this is the chapter in the name of development, and we have already understood what constitutes the concept of development. We have also referred various instances and all. So now we shall take this chapter further, and to our better understanding, we shall be comparing some of the important aspects. So let's see what are those important aspects in this chapter. Now, till now we have discussed the, what actually development means and what are the various factors which constitutes the development. We have studied the, monetary factors, non-monetary factors, and so on. So let's get started. So this is our NTC special series, and as I have already told you, there is nothing harm in it if you study this as well. If you study this for your CBSE class also, so it would always benefit you. Okay. So how to compare different countries or states? All right. So this is our fourth topic. All right. So how do we compare different countries or state? कौन सी कंट्री अच्छी है, कौन सी कंट्री किस लेवल पर है, ये हम कैसे कंपेयर करते हैं, स्टेट्स के बीच में हम कैसे कंपैरिजन करते हैं. So to be very specific, now you can see what criteria is to be chosen for the all-round progress of children in the class. Now there are some criteria, there are some broad, of factors which are to be undertaken, all right, which are actually taken to identify the performance of the children. So you can say it that what kind of evaluation system our country has or something like that. Okay, so what are the basic criteria which are chosen for the all-round development of children? Okay, what is all-round development? That is their social development, their mental development, their economic development, all right. So and their curriculum development. So we actually take all these factors. Now let's understand this. Usually we take one or more important characteristics of persons and compare them based on these characteristics. Now what are these characteristics? देखिए कुछ बच्चों को हम डिफरेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल कैरेक्टर. फॉर एग्जांपल कोई बच्चा लंबा है, ठीक है, कोई बच्चा पतला है, ठीक है, कोई हेल्दी है. सो हम उन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे हम कंपेयर कर देते हैं. ओके, कोई बच्चा बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन होता है, कोई बच्चा लाउड होता है. ओके, एंड उसके फिर हम मार्क्स के बेस पे उसको डिफरेंशिएट करते हैं, उसको कंपेयर करते हैं एक्चुअली. तो दीज आर सम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स on the basis of which we compare the students. All right. So we take one or more characteristic of persons. Now, of course, there can be differences about what are important characteristics that should form the basis of comparison. So there will be a differences. All right. There will be a differences. Okay, about what are important characteristics. Okay, now friendliness and spirit of cooperation, creativity or marks secured, etc. Some students, as I have told you, that some students have a very reticent kind of personality. What I mean by this, that बहुत शांत, एकदम चुप रहने वाले, किसी से बात नहीं करना, ठीक है. कुछ स्टूडेंट जो होते हैं बहुत ज़्यादा टॉकेटिव होते हैं, they are garrulous, all right, and कुछ स्टूडेंट जो होते हैं बहुत फ्रेंडली नेचर के होते हैं, कुछ जो है वो सेक्लूडेड पसंद करते हैं, मतलब अकेला रहना पसंद करते हैं. कुछ स्टूडेंट में एक स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन होता है, सबके साथ मिलजुल करके काम करना उनको पसंद आता है.
कुछ स्टूडेंट जो है बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत क्रिएटिव होते हैं और मार्क्स बहुत अच्छे लाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स एवरेज होते हैं, ठीक है, बट वो और किसी फील्ड में आगे निकल जाते हैं. सो दीज आर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, दीज आर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वी यूज फॉर द कंपैरिजन. ऑलराइट, नाउ for comparing countries, their income is considered to be one of the most important attributes. First of all, now if we compare any country, so the income is the most important attribute for any country. Income, all right. So our focus is on income now. Countries with higher income are more developed than the others with the less income. So if I take an example of USA, so USA is a developed country. Alright, USA, United States of America, is a developed country. Britain is a developed country. France and all. Right? Alright. Then, so if I categorize India, so India comes into a low middle income countries. Alright. So it is a developing country. It is a developing country. Alright. Now this is based on the understanding that more income means more of all things that human beings need. Okay, this means that more income, ज़्यादा income का मतलब क्या होता है? More incomes means more of all things that human beings need. उससे ज़्यादा भी हमें बहुत कुछ चाहिए, ठीक है. इनकम के अलावा भी और सारे फैक्टर्स हमारे पास होने चाहिए, ठीक है, टू बी डेवलप्ड. Whatever people like and should have, they will be able to get with greater income. So greater income itself is considered to be one important goal. अगर आपकी इनकम अच्छी है और आपको कुछ भी पसंद है तो आप कुछ भी खरीद सकते हैं. ऑलराइट, आप अच्छी इनकम से कुछ भी खरीद सकते हैं, मगर कुछ भी खरीदने का मतलब ये नहीं हो गया कि आप एक अच्छा एनवायरनमेंट खरीद लेंगे, आप एक अच्छी हेल्थ खरीद लेंगे, आप एक अच्छी फ्रेंडशिप खरीद लेंगे, आप एक अच्छा रिलेशनशिप खरीद लेंगे. नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है. अच्छी इनकम का मतलब हो गया मटेरियल एस्पेक्ट में अगर आप जाते हैं, मटेरियल चीजों के बारे में अगर मैं बात करूं तो वो चीज आप खरीद सकते हैं, टैंजिबल चीजें जिसको आप देख सकते हैं, जिसका आप इस्तेमाल करते हैं, आप कंज्यूम करते हैं, ठीक है. गुड्स एंड सर्विसेज फॉर एग्जांपल. ऑलराइट, यू मे हैव बेटर गुड्स एंड सर्विसेज विद ग्रेटर इनकम, बट यू मे नॉट हैव the feeling of friendliness and all, the feeling of compassion with your income, with your greater income. So actually depends upon person to person. All right, now so we compare the average income, which is the total income. Now what is the average income of a country? The total income of a country divided by its total population. This is the formula of calculating the average income. कंट्री की जो टोटल इनकम है उसको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देना, दैट ब्रिंग्स टू द एवरेज इनकम ऑफ द कंट्री. ऑलराइट, और उसी एवरेज इनकम को हम पर कैपिटा इनकम के नाम से भी जानते हैं. सो दैट मीन्स वी हैव पर कैपिटा इनकम इन पिक्चर. हम पर कैपिटा इनकम, ये जो कॉन्सेप्ट है पर कैपिटा इनकम का इकोनॉमिक्स में, हम इसको इस्तेमाल करते हैं while comparing the nations, while comparing the countries. Alright, so per capita income constitutes an important factor in comparison. Alright, so average income is also known as per capita income. And what is average income? It is the total income of the country which is divided by its total population. Alright, so this is what, and you must have heard about GDP and all. Alright, so all the value of final goods and services which is produced in an economy in a given period of time in a financial year within its boundary is known as GDP. Alright, so we actually compare the countries on the basis of GDP as well. Now you can see this is the World Development Report. Alright, and this World Development Report is actually, so this World Development Report is actually, written by World Bank. It is published by World Bank. So World Bank is responsible for publishing the World Development Report. Now what it says, देखिए एनटीएससी का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसी पेज में बन जाता है, ठीक है. ये जो पेज है, इस पेज में सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन गया एनटीएससी में. ऑलराइट, तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या बोलता है? कंट्री
वो कंट्री जिनकी पर कैपिटा इनकम 12,056 यूएस डॉलर्स के बराबर या ऊपर है 2017 के अनुसार, वो कंट्रीज आ जाएंगी आपकी रिच कंट्रीज की कैटेगरी में। अब ये जो फिगर है ना, ये आपको फिगर एक्चुअली ध्यान में रखनी है। ये जो फिगर है, ठीक है, ये फिगर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये एनटीएससी में पूछा जाता है, ठीक है। तो 12,056 यूएस डॉलर्स पर एनम, ठीक है। वो कंट्री जिनकी पर कैपिटा इनकम 955 यूएस डॉलर्स के बराबर या उससे कम है, उसको बोला जाता है लो इनकम कंट्रीज, लो इनकम कंट्रीज, ठीक है। एंड इंडिया कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मिडिल इनकम कंट्रीज, जो कि मैंने अभी आपको पहले बताया, जिसकी पर कैपिटा इनकम 2017 में कितनी थी, 1820 यूएस डॉलर्स पर एनम। ऑलराइट, तो यूएस के केस में डेवलप कंट्री हो गई यूएस, और जो मिडिल इनकम जो लो इनकम कंट्रीज है जैसे अफ्रीकन नेशंस है, दे आर अंडर डेवलप्ड नेशंस, एंड इंडिया कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ डेवलपिंग नेशन। ऑलराइट, so the rich countries excluding countries of Middle East and certain other small countries are generally called developed countries, ठीक है। तो मिडल ईस्ट को हटा करके और जितने भी स्मॉल कंट्रीज हैं उनको अगर हम एक्सक्लूड कर दें तो रिच कंट्री जो है वो एक डेवलप्ड कंट्री की कैटेगरी में आती है, ठीक है। ये बहुत सिंपल था, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्चुअली जो टेबल है ना, ये टेबल की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, आपको इसी से समझ में आ जाएगा। चलिए टेबल एक बार ध्यान से देखते हैं कि ये टेबल एक्चुअली बता क्या रहा है। नाउ अब देखिए यहां पर एवरेज इनकम की बात हो रही है, यहां पर किसकी बात हो रही है, यहां पर बात हो रही है एवरेज इनकम की, ठीक है। While averages are useful for comparison, they also hide disparities. अब डिस्पैरिटी यहां पर क्यों आ रहा है, देखिए मैं आपको साफ सीधी बात बताता हूं। आप पिक्चर ए देख रहे हैं, पिक्चर बी देख रहे हैं, ठीक है। पिक्चर ए में कंट्री विद नो रिच एंड नो पुअर, दे ऑल आर इक्वल, दे ऑल आर इक्वल, सभी आराम से बैठे हुए हैं, ठीक है, शेयरिंग हो रही है, कुर्सी पे आराम से बैठे हुए हैं। कंट्री बी में देखिए एक आदमी बहुत इत्मीनान से लेटा हुआ है 4 कुर्सियों पे, और बेचारे जो 4 बंदे हैं वो 2 कुर्सी पे एडजस्ट कर रहे हैं। तो ये तो ज्यादती हुई, ठीक है, ये तो बिल्कुल भी जस्टिस नहीं है, ठीक है, इट इज इनजस्टिस। नाउ फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसिडर 2 कंट्रीज ए एंड बी, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी हैव अज्यूम दैट दे हैव ओनली 5 सिटीजन्स, ठीक है। हमने अज्यूम कर लिया है कि एक कंट्री में 5 सिटीजन है, ऑफ कोर्स ऐसा होता नहीं है, ठीक है, बट हमने अज्यूम किया है। एंड बेस्ड ऑन द डेटा गिवन इन टेबल 1.2 कैलकुलेट द एवरेज इनकम फॉर बोथ द कंट्रीज। अब एवरेज कैसे निकालेंगे, जैसे कंट्री 1 2 3 4 5 है, इनका आपने टोटल निकाल लिया, इनको ऐड कर लिया, ऐड करने के बाद 5 से इनको डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड कर दो, उस कंट्री की एवरेज इनकम निकल जाएगी, ठीक है। तो एवरेज इनकम को हम पर कैपिटा इनकम भी बोलते हैं, ठीक है। अब क्या आप इन कंट्रीज में इक्वालिटी देख रहे हो, कंट्री ए में इक्वालिटी है, कंट्री ए में इक्वालिटी है, आप देखिए, ठीक है। और कंट्री बी की आप फिगर देखिए 500 500 500 500 एंड 48,000। नाउ परहैप्स सम ऑफ अस मे लाइक टू, अब हम में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि कंट्री बी में रहना पसंद करेंगे, अगर 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 वहां पर एक क्या है, वहां पर एक फैक्टर है, एक कंडीशन है, अगर हमें 5th सिटीजन की कैटेगरी में डाल दिया जाए जिसकी इनकम क्या है 48,000 है, तो हम खुशी खुशी वहां पर रहना पसंद करेंगे कंट्री बी में, ठीक है। ऑलराइट, then but if it is a lottery that decides our citizenship number, then perhaps most of us will prefer to live in country A। अगर मान लीजिए कि हमारे को ये कंडीशन दे दी कि लॉटरी के बेसिस पे आपको सिटीजनशिप मिलेगी, तो जाहिर सी बात है हम लोग कंट्री ए का पार्ट रहना चाहेंगे, क्योंकि वहां पर इतनी ज्यादा डिस्पैरिटी नहीं है जितनी डिस्पैरिटी कंट्री बी में है। ऑलराइट, even though both the countries have
identical average income, country A is preferred because it has more equitable distribution. अब देखिए कहने का मतलब ये है, जब आप खुद से ये सॉल्व करेंगे, आप पार्ट ए सॉल्व करें यानी कि कंट्री ए सॉल्व करें, इनका एवरेज निकाल लीजिए, कंट्री बी का एवरेज निकाल लीजिए, दोनों का सेम आएगा। सेम आने के बावजूद भी, ठीक है, सेम आने के बावजूद भी दे आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। ऑलराइट, द इनकम इज नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। सो इन दिस कंट्री पीपल आर नीदर वेरी रिच नॉर एक्सट्रीमली पुअर। ठीक है, यानी कि कंट्री ए की बात मैं बात कर रहा हूं, कंट्री ए की बात हो रही है। पीपल आर नीदर रिच नॉर एक्सट्रीमली पुअर। ऑन अदर हैंड मोस्ट सिटीजन इन कंट्री बी आर पुअर एंड वन पर्सन इज एक्सट्रीमली रिच, सो देयर इज अ डिस्पैरिटी। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है, ये इतना बड़ा एग्जाम्पल आपको क्यों समझाया जा रहा है, क्योंकि जो एवरेज इनकम है ना, although it is useful for the comparison, but it does not tell us how the income is distributed among the people. कंपैरिजन तो हमने मान लिया कि इसका कंपैरिजन अच्छा है, ठीक है, हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, मगर एक्चुअली इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है अमंग द पीपल, इट डज नॉट टेल। ये इसका लिमिटेशन बन गया। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। चलिए, इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, ये अलग टॉपिक आ गया, इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। अब इसमें क्या है, जब भी देखिए, कल हमने पढ़ा था एस्पिरेशन और डेवलपमेंटल गोल्स। ठीक है, कल हमने इसके बारे में पढ़ा था। सो वी फाउंड दैट पीपल नॉट ओनली थिंक ऑफ बेटर इनकम बट ऑल्सो हैव गोल्स सच एज सिक्योरिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम एटसेट्रा, लिबर्टी एंड ऑल। ठीक है, एंड सिमिलरली व्हेन वी थिंक ऑफ अ नेशन और रीजन वी मे बिसाइड्स एवरेज इनकम थिंक ऑफ अदर इक्वल इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। यानी कि अगर हम इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से देखें तो इनकम के अलावा बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी, इक्वल ट्रीटमेंट, ठीक है, एक जैसा व्यवहार हो हमको, हमारे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, हमें फ्रीडम मिले, आजादी मिले, ये सब। ठीक है, अगर हम एक इंडिविजुअल नेशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो एवरेज इनकम ही एक इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं होता, उसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अब क्या फैक्टर है देखिए, तो आप ये बहुत ध्यान से देखिए कि ये जो पिक्चर, ये जो एक्चुअली टेबल है, इकोनॉमिक सर्वे का ये सोर्स है, ये जो टेबल है ना, इसको आप ध्यान से देखिए। अब इसमें पर कैपिटा इनकम ऑफ सिलेक्टेड स्टेट्स के बारे में दे रखा है। ठीक है, हरियाणा, केरला और बिहार। हरियाणा की जो पर कैपिटा इनकम है, इनकम मान लो, वो है 1,80,174 एज कंपेयर टू केरला विच इज मोर डेवलप्ड देन हरियाणा। एक्चुअली इट इज 1,63,475 एंड सिमिलरली if I calculate, if I see the per capita income of Bihar, it is 34,409. So that is least. सबसे कम बिहार की है पर कैपिटा इनकम। ऑलराइट, अब यहां पर देखिए, आपको दो फिगर में मैं इसमें कंपैरिजन करवाता हूं। ठीक है, हमारे पास दो टेबल है, उस दो टेबल में मैं आपको कंपैरिजन करवाता हूं। ये देखिए, सम कंपैरेटिव डेटा ऑन हरियाणा, केरला एंड बिहार। अभी हमने देखा कि हरियाणा की जो पर कैपिटा इनकम है सबसे ज्यादा है, ठीक है, उससे कम केरला, फिर सबसे कम बिहार की है। अब यहां पर देखिए क्या है, यहां पर देखिए क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर 1000 लाइव बर्थ्स, ये 2017 का डेटा है हरियाणा में। देखिए, नाउ व्हाट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, IMR होता क्या है? It indicates the number of children that die before the age of 1 year as a proportion of 1,000 live children born in that particular year। यानी कि वो बच्चे 1000 में से, ठीक है, वो बच्चे मर जाते हैं हरियाणा में जो कि अपना पहला बर्थडे भी नहीं मनाते। ठीक है, यानी कि जब तक वो 1 साल के ना हो जाते, ठीक है, वो 1 साल के कंप्लीट भी नहीं हुए, उससे पहले ही उनकी डेथ हो जाती है।
यानी कि 1000 में से 30 बच्चों का आंकड़ा हरियाणा से हमें मिलता है, ठीक है। देन केरला से 1000 में से 10 बच्चों का आंकड़ा मिलता है। अब हालांकि आप देखो कि हरियाणा की जो पर कैपिटा इनकम है केरला से बहुत अच्छी है, मगर क्या पर कैपिटा इनकम ही एक इकलौता फैक्टर होना चाहिए कंपैरिजन का? नहीं। कहने का मतलब यह है, इस टेबल को शो करने का मकसद क्या है? सिर्फ आपको बताना कि हरियाणा में जो IMR है, जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, वो 30 है, यानी कि 1000 में से 30 बच्चे मर जाते हैं। 1000 में से 30 बच्चे मर जाते हैं बिफोर दे अटेन द एज ऑफ 1 ईयर, 1 साल से पहले, ठीक है। वहीं केरला का हमने कंपैरिजन देखा। अब बिहार का कंपैरिजन देखो, 35। तो यानी कि बिहार जो है बहुत ज्यादा अंडर डेवलप्ड कैटेगरी में आता है यहां पर, अगर हम सारे फैक्टर्स देखें तो, ठीक है। अब दूसरे फैक्टर पे आ जाओ, लिटरेसी रेट। 2011 के हिसाब से हरियाणा में जो लिटरेसी रेट है वो 82% है, केरला का जो लिटरेसी रेट है वो 94% है, और बिहार का तो आप जानते हैं 62% लिखा हुआ है यहां पर, ठीक है। अब कंपेयर करें तो हरियाणा की पर कैपिटल इनकम बहुत ज्यादा अच्छी है केरला से, बट उसका लिटरेसी रेट केरला से काफी कम है, ठीक है, काफी कम है। नाउ यू सी नेट अटेंडेंस रेशियो पर 100% सेकेंडरी स्टेज एज 14-15 ईयर्स। अब ये आपको डेटा दे रखा है कि जो बच्चे स्कूल अटेंड करते हैं, ठीक है, नेट अटेंडेंस रेशियो कितना है 100 में से? 61 ओनली इन केस ऑफ हरियाणा, 83 इन केस ऑफ केरला एंड 43 इन केस ऑफ बिहार। तो कहने का मतलब यह है, ये जो फिगर है, ये जो टेबल है, ये हमें क्या दिखा रही है? ये टेबल हमें यह बताना चाहती है कि सिर्फ और सिर्फ कंट्री की इनकम या स्टेट की इनकम या पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम ही एक ऐसा इकलौता फैक्टर नहीं होना चाहिए कंपैरिजन के लिए, और चीजें में भी हमें कंपेयर करना है, ठीक है। सो दीज आर नॉट द ओनली फैक्टर्स विच आर यूज्ड टू कंपेयर, ठीक है, बट देयर मस्ट बी सम अदर फैक्टर्स। अब इन केस ऑफ ह्यूमन फैक्टर्स हमने देखा, ठीक है, हमने देखा कि हमें मॉनेटरी फैक्टर्स के अलावा नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स भी हमारे लिए एसेंशियल है, और इसमें एवरेज इनकम के अलावा और फैक्टर्स भी एसेंशियल होते हैं, ठीक है। तो इसको समझाने का मतलब सिर्फ इतना ही था। मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, जो एवरेज इनकम है, एवरेज इनकम ही एक इकलौता सोर्स नहीं होना चाहिए कंपैरिजन के लिए, और भी फैक्टर्स देखो, तब आपको रियल टर्म्स में कंपैरिजन पता चलेगा, ठीक है। तो ये चीज है। अब आगे आ जाओ, पब्लिक फैसिलिटीज। जी हां, अब देखिए पब्लिक फैसिलिटीज में बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ऑलराइट, नाउ हाउ इज इट दैट द एवरेज पर्सन इन हरियाणा हैज मोर इनकम than the average person in Kerala but lags behind these crucial areas? The reason is money in your pocket cannot buy all the goods and services that you need to live well. हमने कल भी ये पढ़ा था, ठीक है। Money cannot buy a good environment for you. You cannot buy a good health facility. Actually, you cannot buy a good health for yourself via the means of money. So money alone is not at all the important factor, but apart from money there are many other factors which are crucial. All right, ठीक है। So income by itself is not a completely adequate indicator of material goods and services that are able to use. तो सिर्फ इनकम ही एक ऐसा सोर्स नहीं है, एक इनकम ही एक ऐसा एडिक्वेट इंडिकेटर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मली योर मनी कैनॉट बाय अ पोल्यूशन फ्री एनवायरमेंट, जैसा कि अभी मैंने बताया, और इंश्योर दैट यू गेट अनअडल्टरेटेड मेडिसिन जिसमें मिलावट नहीं है, अनलेस यू कैन अफोर्ड टू शिफ्ट टू अ कम्युनिटी दैट ऑलरेडी हैज ऑल दीज थिंग्स। तो यानी कि
सिर्फ पैसा आपको पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट नहीं दे सकता, ये लोगों पर डिपेंड करता है, ये लोगों की सोच पर डिपेंड करता है, उनके कल्चर पर डिपेंड करता है, उनके व्यवहार पे डिपेंड करता है, वो अपनी कम्युनिटी को कैसे बेहतर बनाना चाहते हैं। ऑलराइट, अच्छा सीखोगे तो ऑफ कोर्स की बात है आप अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाओगे, बुरा सीखोगे, गंदी संगत में रहोगे तो जाहिर सी बात है आपको माहौल कभी भी अच्छा नहीं मिलेगा। इवन नाउ इन मेनी एरियाज children, particularly girls, are not able to go to high school because the government or the society has not provided adequate facilities. हम quality education की बात करते हैं, हम retention की बात करते हैं, gross enrollment ratio की बात करते हैं, और जब हमारे सामने figures आती है वो figures हमें चौंका देती है, हमें stun कर देती है कि what the hell is this? But actually हम उसके लिए, हम उसके फेवर में क्या कदम उठा रहे हैं, वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट। फाइन, वी हैव जस्ट मेंशन्ड प्रोवाइडिंग द क्वालिटी एजुकेशन, बट व्हाट टाइप ऑफ क्वालिटी एजुकेशन यू आर गोइंग टू गिव? व्हाट इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी एजुकेशन अकॉर्डिंग टू यू? You have given the concept of smart cities, but what actually smart city means? So the awareness is very much important. Okay, and Kerala has a low infant mortality rate because it has adequate provision of basic health and educational facilities. हमने देखा केरला के केस में, ये देखिए जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है IMR है वो काफी कम है हरियाणा से। हरियाणा इतनी अच्छी पर कैपिटा इनकम होने के बावजूद भी केरला की जो IMR है बहुत अच्छी है हरियाणा से। क्यों? क्योंकि केरला में जो बेसिक हेल्थ और एजुकेशनल फैसिलिटीज है बहुत ही अच्छी है, बहुत एडिक्वेट है, ठीक है। और सिमिलरली इन सम स्टेट्स द PDS यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फंक्शंस वेरी वेल एंड हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ पीपल ऑफ सच स्टेट्स इज सर्टेनली लाइकली टू बी बेटर। तो जिस स्टेट का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अच्छा है, जहां पर करप्शन नहीं है, जहां पर मारामारी नहीं है, ठीक है, लोग सही ढंग से अपना राशन कार्ड दिखा के या कुछ भी ऐसा कार्ड दिखा करके खाना लेते हैं और उनको और लोगों तक असलियत में खाना पहुंचता है, ठीक है। बीच में जो मिडल मैन है वो क्या घपला करते हैं, वी आर नॉट बॉदर्ड विद दैट, ऑलराइट। बट हमें अवेयरनेस होनी चाहिए कि कैसा हमारा सिस्टम काम कर रहा है। ओके, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। नाउ Human Development Report HDR. Health and education indicators such as ones we used in comparison of Kerala and Haryana are among them. तो हमने ये दो इंडिकेटर का इस्तेमाल किया जब हमने इनको कंपेयर किया। Now over the past decade or so, health and education indicators have come to be widely used among with income as a measure of development. ठीक है, तो कुछ सालों से हेल्थ और एजुकेशन एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर बन गए हैं वाइल, ठीक है, इनकम के साथ साथ हेल्थ और एजुकेशन एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर बन गए हैं व्हेन वी मेजर द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। इंस्टेंस के रूप में ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट विच इज पब्लिश बाय UNDP। अब NTSC में यही इंपॉर्टेंट है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है विच इज पब्लिश्ड बाय UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। UNDP ये भी पूछा जा सकता है आपसे, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इट कंपेयर्स कंट्रीज बेस्ड ऑन द एजुकेशन लेवल्स ऑफ द पीपल, एजुकेशनल लेवल ऑफ द पीपल, हेल्थ स्टेटस एंड पर कैपिटा इनकम। तो HDR 3 फैक्टर्स, HDR कितने फैक्टर्स को लेती है? 3 फैक्टर्स को, ठीक है, 3 फैक्टर्स। HDR कंसिडर्स एक्चुअली 3 फैक्टर्स, और वो 3 फैक्टर्स कौन से हैं? वो 3 फैक्टर्स हैं, एक तो आ गया आपका एजुकेशनल लेवल, एक आ गया आपका हेल्थ स्टेटस, और एक आ गया आपका पर कैपिटा इनकम, ठीक है। सो दीज आर वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन कौन से फैक्टर्स को कंसिडर करता है? एजुकेशन फैक्टर,
हेल्थ फैक्टर एंड पर कैपिटा इनकम फैक्टर, ये 3 फैक्टर के बारे में आपको पता होने चाहिए HDR के संदर्भ में. देन इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू लुक एट सर्टेन रिलेवेंट डेटा रिगार्डिंग इंडिया एंड इट्स नेबर्स फ्रॉम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2019. अब भारत और भारत के पड़ोसी मुल्क के बारे में अगर हम बात करते हैं, जो पड़ोसी देश है उसके बारे में बात करते हैं, तो हमारे पास जो डेटा है 2019 का वो आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूं. तो ये है जी हमारा डेटा. नाउ अब देखिए, सम डेटा रिगार्डिंग इंडिया एंड इट्स नेबर्स फॉर 2017. अब देखिए कंट्री में है श्रीलंका, इंडिया, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल एंड बांग्लादेश जी. तो इन 6 कंट्रीज के बारे में दे रखा है. इनकी ग्रॉस नेशनल इनकम कितनी है, जो पर कैपिटा इनकम है, ठीक है. श्रीलंका की सबसे ज्यादा है, उसके बाद इंडिया, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, ठीक है. अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एज बर्थ का मतलब यह होता है एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ. यानी कि एट द टाइम ऑफ बर्थ आदमी, ठीक है, आदमी की जो एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ है वो कितनी होने वाली है या वो कितनी है एक्चुअली, ठीक है. ये कोई प्रॉपर मेजर नहीं है, ये मतलब ये कोई फिक्स इंडिकेटर नहीं है कि इतना ही इंसान जिएगा. एक्चुअली इट इज द कैलकुलेशन, ठीक है, ये कैलकुलेशन है. देन 11,326 सबसे ज्यादा श्रीलंका की है. और लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ देखिए, इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ देखिए 68.8, यानी कि 68 साल की उम्र में ही. ऑलराइट. मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ऑफ पीपल एजेड 25 एंड अबव, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ऑफ पीपल, तो श्रीलंका के केस में 10 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग आता है, बहुत सही है, ठीक है. इंडिया के केस में 6.4 एज कंपेयर टू म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, वी आर फार बेटर. ऑलराइट. एंड HDI इंडेक्स में अगर हम देखें तो हमारी रैंक 130 आती है, 130, ठीक है. यानी कि आप देखिए हम कितना पीछे हैं श्रीलंका से, कितना ज्यादा पीछे हैं. आर यू गेटिंग दिस? सो दिस इज द वे ऑफ कंपेयरिंग द नेशन. Now we have just seen the per capita income, but apart from per capita income, these are also the important factors which must be considered. Okay, so this is what. तो आपने ये देख लिया, इसमें कंपैरिजन देख लिया कि और पैरामीटर्स में इंडिया कितना पीछे है. बहुत सारे पैरामीटर्स में हम कितने पीछे हैं. श्रीलंका हमारे से बहुत बहुत आगे है, हर चीज में हमारे से बहुत आगे है. हमारा जो HDI रैंक है वो 130 है, कितना पीछे हैं हम लोग. ऑलराइट. नाउ सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, दिस इज द लास्ट यूनिट ऑफ दिस टॉपिक. सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज डेवलपमेंट दैट मीट द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन. यानी कि प्रेजेंट नीड को मीट करने के लिए फ्यूचर नीड को कॉम्प्रोमाइज करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए. विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर नीड्स. फ्यूचर जनरेशंस के लिए हमें रिसोर्सेज बचा करके रखने हैं, जुडिशियसली उसको यूज करना है, ठीक है, इन अ वेरी अप्रोप्रिएट मैनर में उसको यूज करना है, ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन उसको अच्छे से इस्तेमाल कर सके और आगे आने वाली कई जनरेशन के लिए वो संभल जाए. तो दिस इज व्हाट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज, ठीक है. जो प्रेजेंट नीड है वो उसको मीट करने के लिए, उसको एक्चुअली मीट करने के लिए, ठीक है, जो हमारी ज़रूरतें हैं उसको मीट करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए हम रिसोर्सेज का इस्तेमाल उस ढंग से करें ताकि जो आगे आने वाली जनरेशन है, जो फ्यूचर जनरेशन है, वो कॉम्प्रोमाइज ना हो, उसके साथ कोई खिलवाड़ ना हो. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट इज. And scientists have been warning that the present type and levels of development are not sustainable. ठीक है, क्योंकि उसके पीछे क्या रीजन? ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर, एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, और लैंड डिग्रेडेशन. बहुत ज्यादा, बहुत बड़े लेवल पे लैंड डिग्रेड कर रहे हैं हम, ठीक है.
डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, डेजर्टिफिकेशन हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को खराब कर रही है। ओके, so overuse of ground water and exhaustion of natural resources. So this is what you have to state when it is asked in CBSE or NTSC. All right, तो हमें सिर्फ बुक के हिसाब से ही पढ़ना है. So this is what. All right. So this brings the end of this chapter. I hope you all must have understood the chapter very much clearly. You just need to go through the video again, and also you can refer to the NCERT, of course. Reading NCERT is very much important. I'm not denying the fact that you must not read the NCERT. You should read the NCERT, as I've told you that it is very much important for your NTSC exam. And also please just watch this video 2, 3, 4, 5 times as much as you can, because while comparing, when you compare the table, all right, which has been given in your NCERT, so it would help you out in analyzing what has been actually said. Okay, so this chapter is just meant for you. This chapter actually meant that students should be aware with respect to their country's income, with respect to a very basic concepts which is used in the economics. Okay, so you must be aware that what is the present situation of our country with respect to many factors, as we have seen, like infant mortality rate, we have seen the education factors, we have seen the health factors, and we have seen the average income, per capita income, and so on. So students must know these attributes. Student must know the importance of United Nations Development Program, the importance of Human Development Report, the Human Development Index. All right, what are the indicators which are used for those index and all. So आपको ये पता होना चाहिए, बेसिक तो कम से कम आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है. So till then, I'll take your leave. Stay tuned, stay connected. We are coming with more and more exciting videos. All right. So tomorrow we shall be discussing the chapter on geography, most probably. All right. So thank you so much for watching the video.